انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ حدید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنی رسول کی بات مانو۔ فرمایا بدلے میں اللہ رب العزت آپ کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، اللہ پاک اپنی رحمت عطا فرمائیں گے اور قیامت کے دن تمہیں نور عطا فرمائیں گے، روشنی عطا فرمائیں گے، جس روشنی میں تم سفر کرو گے اور اللہ پاک تمہاری گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ آج رمضان المبارک کا آخری اور اختتامی جمعہ ہے۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ لوگوں کے درمیان جو جمعۃ الوداع کی اصطلاح ہے یا جمعۃ الوداع کی جو حیثیت ہے، نہ یہ اللہ نے بتلایا ہے، نہ اللہ کے رسول نے بتلایا، نہ صحابہ کرام نے رمضان کا آخری جمعہ اسے جمعۃ الوداع کہا ہے، اور نہ ہی اس دن کی کوئی خاص فضیلت ہے اور نہ ہی اس دن کے لیے کوئی خاص عمل ہے۔ لوگوں کے ہاں جو اس جمعے میں جو آخری جمعہ ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی نماز مشہور کی گئی ہے کہ 4 رکعتیں مخصوص طریقے پر پڑھی جائیں تو زندگی بھر کی، سال بھر کی جتنی بھی قضا نمازیں ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ آقا کے شریعت میں ایسا کوئی فلسفہ موجود نہیں ہے، بلکہ بالغ ہونے کے بعد آپ سے جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان تمام فرائض کی تکمیل، ان کا قضا کرنا آپ پر لازمی اور ضروری ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو حشر کے میدان میں ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے ہم مشورہ یہی دیتے ہیں کہ ہم کمزور اور ضعیف لوگ ہیں، ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نوافل کے بجائے قضا نمازیں پڑھا کریں، اس لیے کہ قضا نمازوں کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا، اور نوافل آپ کے اعمال کے نور کو بڑھا دے گا، آپ کے درجات کو بلند کر دے گا۔ پہلے آپ کو جنت ملے تو پھر نوافل آپ کے درجات کو بڑھا دیں گے، جب آپ کو جنت ہی نہ ملے تو نوافل آپ کے درجات کو کیسے اونچا کر سکتے ہیں، بلند کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو ابھی نوجوان ہیں وہ کوشش کریں کہ ان سے کوئی نماز قضا نہ ہو، اور جن سے قضا ہو چکی ہیں تو وہ اپنی قضا نمازیں فرداً پڑھ لیا کریں۔ ایسی کوئی سہولت شریعت میں نہیں ہے کہ رمضان کے آخری جمعے میں آپ 4 رکعتیں پڑھیں گے اور آپ کی زندگی بھر کی قضا معاف ہو جائیں گی۔ اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود ساختہ اپنے طور پر پیش کیا ہے۔ دوسری بات جو بنیادی عرض کرنی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح قیام اللیل، تراویح اور تہجد کی توفیق بھی ملی، نمازیں بھی ہم نے خوب پڑھی۔ ابھی تک الحمدللہ ہماری مسجدیں وہ نمازیوں سے بھری پڑی ہیں، دل خوش ہوتا ہے کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہو۔
अल्लाह करे कि यही जज्बा साल भर कायम रहे, इसलिए कि ये नमाजें मेरे रब ने सिर्फ रमज़ान के महीने में फ़र्ज नहीं किए, बल्कि यह साल भर और ज़िंदगी भर के लिए हैं। और मर्दों पर सिर्फ रमज़ान में नहीं, साल भर की नमाज बाजमात अदा करना वाजिब है। तो हम साल भर में जिस तरह अभी कोशिश करते हैं, इसी तरह कोशिश करें और अपनी नमाज जमात के साथ अदा करें जिस तरह अभी करते रहे हैं। और अल्लाह पाक से ये दुआ भी करें कि अल्लाह पाक हमें तौफीक बख्शे, इसलिए कि हम अपनी क़ुव्वत और ताकत से कुछ नहीं कर सकते जब तक कि मेरा रब हमें और आपको तौफीक न दे। तो अल्लाह पाक से तौफीक मांगी जाए कि जिस तरह रमज़ान में उस ज़ात ने तौफीक बख्शी है, इसी तरह गैर रमज़ान में भी वो रब हमें तौफीक अता फरमाए। तीसरी बुनियादी बात कि रोज़ा नमाज मेरे पैगंबर ने जो दीन हमें दिया है, ये उसका एक हिस्सा है। शरीयत के बुनियादी 5 बड़े बड़े सुतून हैं, 5 बड़े बड़े जुज हैं, 5 बड़े बड़े हिस्से हैं। एक हिस्सा वो एतिकादियात कहलाता है, अल्लाह पर ईमान रखना, रसूल और नबियों पर ईमान रखना, फरिश्तों को मानना, किताबों पर ईमान रखना, मर कर दोबारा जिंदा होने पर ईमान रखना, अपने तकदीर के खैर और शर पर ईमान रखना, ये तमाम एतिकादात हैं। एक हिस्सा हमें जो शरीयत हमारे पैगंबर ने दी है, उनमें से एक हिस्सा ये है। एक हिस्सा इबादत है। इबादत में नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये तमाम इबादत हैं। ये उस शरीयत का जो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने 23 साला दौर नबूवत में हमें अता फरमाया है, उसका एक हिस्सा है। उसमें से एक हिस्सा वो मामलात है, तिजारत, खरीदो फरोख्त, शराकत दारी, माल कमाना, माल खर्च करना, खरीदो फरोख्त, ये मामलात कहलाते हैं। जिस तरह मेरे आका के कलमा पढ़ने वाले के लिए नमाज पढ़ना लाजमी है और उस तरीक़े के मुताबिक जो तरीक़ा मेरे पैगंबर ने बतलाया है, तब रब के दरबार में कबूल होगी। इसी तरीके से उस शरीयत और उस पैगंबर ने तिजारत करने का बतलाया कि उसके तरीके के बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर तिजारत होगी तो अल्लाह पाक कबूल करेगा और उस पर सवाब मिलेगा, और अगर उस तरीके के खिलाफ हो तो फिर इंसान के लिए वबाल होगा और उससे पूछा जाएगा, उससे सवाल होगा। अब हमने दीन सिर्फ इसको समझा है कि नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, कलमा है। हालांकि शरीयत ये नहीं, ये तो शरीयत का 5वां हिस्सा है। 4 हिस्से शरीयत इसके अलावा हैं और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इबादत का है। दुनिया जब आपकी कदर करती है, दुनिया में आपकी वक़्त बढ़ती है, दुनिया आप पर एतमाद करती है, वो आपकी नमाजों की वजह से नहीं, वो आपके रोज़ों की वजह से नहीं, वो आपकी हज और ज़कात की वजह से नहीं, बल्कि मुआशरे में आपको इज्जत मिलेगी तो मुआशरत से, तिजारत से मिलेगी, मामलात से मिलेगी। आपको अगर इज्जत की निगाहों से देखा जाएगा तो दियानत की वजह से, अमानतदारी और ईमानदारी की वजह से। अगर आप ईमानदार हैं, आप दियानतदार हैं, लोग आपकी कदर करेंगे, मुआशरा आपकी कदर करेगा, आपको इज्जत की नज़र से देखेगा। अगरचे आपकी नमाजों में कुछ कमी हो, अगरचे आपके रोज़ों में कुछ कमी हो, लेकिन लोग कहेंगे मैंने जब भी इससे कोई सौदा लिया
इसने कभी मुझसे फराड और धोखा नहीं किया, इसने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। और अगर आप 5 वक्त के नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, आपका ज़ाहिरी लिबास वो मेरे आका के शरीयत के मुताबिक है, लेकिन झूठ बोलना आपकी आदत है, फरेब आदत है, धोखा देना आदत बन गया है, मामलात में हेर फेर ये आदत बन गई है, तो हर इंसान दूसरे से कहेगा इसकी नमाजों पर मत जाइए, इसके रोज़ों पर मत जाइए, ये बड़ा बेईमान आदमी है, ये बड़ा बददियानत आदमी है, ये बड़ा खियानतगर आदमी है। इससे मालूम होता है कि मुआशरा मुसलमान होने के हैसियत से अगर हमें पहचानता है, मुआशरे में बहैसियत मुसलमान अगर हमारा कोई तारुफ है तो वो हमारे मामलात है। और अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने खुद तिजारत फरमाई। जिस तरह मेरे पैगंबर नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद अदा करते हैं, रोज़ा रखते हैं, इसी तरह मेरे पैगंबर ने ताजिर बनकर तिजारत की है और तिजारत की वो मिसाल कायम की है कि आपकी तिजारत उस वक्त के गैर मुस्लिमों के लिए भी मिसाल बन गई। हालत ये है, मशवरा हो रहा है कि मेरे पैगंबर को या तो कत्ल किया जाए, या मक्के से निकाल दिया जाए, या इसको कैद कर दिया जाए। यह मशवरा हुआ। अरब के सारे नौजवान तलवार लेकर उन्होंने मेरे आका के हुजरे का घेराव किया। ये निकलेंगे तो हम इनको शहीद करेंगे, इन पर हमला करेंगे। जिब्रील ने आकर बताया, अल्लाह के हबीब आपके इर्द गिर्द पहरा है, तलवारें नंगी हैं, आप निकलिए। अर्ज करने लगे, जब आप खुद बतलाते हैं कि घर का मुहासरा हो चुका है, नंगी तलवारें हैं, तो कैसे निकलूं? फरमाया रब का हुक्म यही है, वो आपको बचाएगा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर उठे, हजरत अली से फरमाया, अली ये ले ले। फरमाया अल्लाह के हबीब ये क्या है? फरमाया ये अबू जहल की अमानत है, ये ले ले। अर्ज करने लगे ये क्या है? फरमाया ये उतबा की अमानत है। ये क्या है? ये शेबा की अमानत है। ये क्या है? ये फलां काफिर की अमानत है, ये फलां काफिर की अमानत है। देखिए बाहर मुहासरा किया हुआ है इसको कत्ल और शहीद करने का, लेकिन जो मंसूबा साज हैं उनको एतमाद इतना है कि अमानत इनके पास पड़ी हुई है। वो मेरा हबीब चाहता उनकी अमानतें लेकर साथ चला जाता, लेकिन नहीं। हजरत अली से फरमाया, अली ये ले ले इनकी अमानतें, सुबह हो जाए तो इनको बुलाकर इनकी अमानतें दे देना, फिर हमारे पास आ जाना। गैर मुस्लिम थे, काफिर थे, मेरे पैगंबर के जानी दुश्मन थे, लेकिन मामलात के हद तक, अमानतदारी और ईमानदारी के हद तक एतमाद इतना है कि अमानतें उनके पास रखवाते हैं। अब हमारे पास कोई अमानत रखवाए ना, रखवाता है कोई अमानत? सक्का भाई अमानत रखवाता है? वो समझता है कल लड़कर लेना होगा, तो अपने माल पर क्यों लड़े, क्यों इसके पास अमानत रखवाऊं? तो आम मुआशरे में हमारी हालत ये बन गई है, जबकि उस पैगंबर ने हमें नमाज के साथ साथ मामलात भी सिखाए हैं। तो हम अपने मामलात भी दुरुस्त करें, ये अज़म करें कि जिस तरह हमने रमज़ान में अपने इबादात को दुरुस्त किया है, इसी तरह अपने मामलात को भी दुरुस्त करेंगे। न झूठ बोलेंगे, न धोखा देंगे, न फरेब करेंगे। मामले में खरीद और फरोख्त में हम किसी तरीके से कोई खिलाफ शरीयत काम नहीं करेंगे।
वक्त भी मुख्तसर है, मुझे वाक़या याद आया। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। उन्होंने 40,000 दिरहम में जैतून का तेल खरीदा, 40,000 दिरहम का। 13 सदियां पहले 40,000 दिरहम की क्या वक़्त होगी। आज दिरहम कहाँ है, तो उस वक़्त दिरहम उसकी क्या हैसियत होगी। और उन्होंने वो तेल लिया 40,000 दिरहम का। उस तेल में कहीं से चूहा कूद कर आकर गिर गया। गुलाम ने आकर बताया कि आका, वो जो हमने तेल खरीदा है उसमें तो चूहा गिर गया, अब क्या करें, परेशान हो गए। कोई मामूली रकम नहीं है, कोई मामूली सरमाया नहीं है, 40,000 दिरहम इसका तेल है। मशवरा देने वाले कहने लगे कि जिस जानिब से चूहा गिरा है बस यही तेल गिरा दे और बाकी तेल फरोख्त कर ले, बेच दे, बाकी तो पाक भी है और किसी को क्या पता चलेगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सोच में है। एक ने मशवरा दिया, दूसरे ने, तीसरे ने। इस तरह के मशवरे देने वाले खैरख्वाह फिर बहुत सारे हो जाते हैं, जो इंसान को बेदीनी की मशवरे देते हैं। दीनदारी के मशवरे बहुत कम लोग देते हैं, कहते हैं ये सादा है। अगर दीनदारी पर अमल हो फिर मुआशरत ताने देता है, सादा आदमी है, इसको नहीं पता मुआशरत का, कारोबार का इनको नहीं पता, कैसे कमाएगा। अगर ये काम करेगा फुटपाथ पर आ जाएगा, फकीर हो जाएगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ना मेरा ज़मीर मुझे इजाजत देता है और ना मुझे मेरे आका की शरीयत इजाजत देती है। नुकसान है, तावान है, हो जाए, गिरा दिया जाए, इस तेलों को तलफ किया जाए, ज़ाया किया जाए। मैं नहीं चाहता कि ये तेल मैं किसी मुसलमान पर बेचकर उसका पैसा अपने जेब में ले लूं। मैं ये समझूंगा कि मैंने रकम, पैसा, दिरहम नहीं, जहन्नम के अंगारे अपने जेब में डाले हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सारा के सारा तेल ज़ाया करवाया, कितने बड़े नुकसान का सामना किया, लेकिन आखिरत के नुकसान का सामना नहीं किया। नुकसान हुआ तो दुनिया का हुआ, बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आखिरत का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया। और हमें 5 रुपए दुनिया की नुकसान बर्दाश्त नहीं, और उसके मुकाबले में हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बने, तो ये नुकसान हमें बर्दाश्त है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक मकाम जब देता है तो ऐसा नहीं देता है। किसी को मंजिलत मकाम खैरात में नहीं मिलती है, किरदार होती है किसी की, तो तब जाकर अल्लाह पाक मकाम देता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रास्ते पर जा रहे हैं, बारिश हुई है, रास्ते में कीचड़ है, चलते हुए आपके जूते से कीचड़ उठा, सामने एक मजूसी है, काफिर है, उसका मकान है, उसके दीवार पर जाकर लग गया। सफर करता है आदमी तो चलते हुए वो जब पांव उठाता है तो उससे कीचड़ का कोई ना कोई कतरा उठ जाता है। इस तरह उठकर दीवार पर लग गया, बेख्याली में, ख्याल ही नहीं था। वही खड़े हो गए कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हुआ, और जाकर दरवाजा बजाया तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए। दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, बच्चा निकल आया, खादिम निकल आया, घर के मालिक को बुलाओ, बड़े को बुलाओ। जाकर उसने कहा अबू हनीफा दरवाजे पर हैं। वो डर गया, इसलिए कि उसने इमाम अबू हनीफा का कर्ज लिया हुआ था, कर्जे का वक्त पूरा हो चुका था, अभी तक उसने वापस नहीं किया, अभी तक उसने वो कर्जा वापस नहीं किया हुआ था। तो उसे यह डर था कि ये घर पर आया है कर्जा मांगने के लिए,
تو اس نے بچے سے کہا پیغام لے لو، کیا پیغام دیتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ غلام یا بچے کے ہاں پیغام کا نہیں ہے، مالک کو بلاؤ۔ اس نے دوبارہ کہا کہ بھئی جو بھی پیغام ہے پیغام بھیج دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جا کر اسے کہو میں اپنے قرض کے مطالبے کے لیے نہیں آیا، کوئی ضروری بات آپ سے کرنی ہے۔ تو مالک نکل آیا، اسے کہا مجھے معلوم ہے میں نے آپ کو قرض دیا تھا، قرض کے لوٹانے کا وقت ہو چکا ہے، شاید آپ کی استطاعت اور گنجائش نہیں ہے، ابھی تک آپ نے لوٹایا نہیں، کوئی بات نہیں، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ مجوسی نے کہا مجھ سے معافی مانگنے کے لیے؟ کہتے ہاں۔ کس چیز کی معافی؟ میں چل رہا تھا، میری جوتی سے یہ کیچڑ، اس کا یہ کچھ تھوڑا سا قطرہ یہ اٹھا آپ کے دیوار پر لگ گیا ہے، اب اگر میں کسی چیز سے اس کو پوریدنا چاہوں تو کچا دیوار ہے، آپ کے اس دیوار کی مٹی بھی اس کے ساتھ آ جائے گی، اور اگر میں اس کو صاف نہ کروں تو آپ کی دیوار پر یہ داغ برا لگے گا، اب پریشان ہوں، کروں تو کیا کروں؟ ہم جس کے مقلد ہیں، ہم جس کو اپنے مذہب کا سربراہ بڑا مشر مانتے ہیں، یہ اس کی بات ہے جس کے طریقے کے مطابق ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس کے طریقے کے مطابق، جس کے فقہ کے مطابق روزے رکھ رہے ہیں، جس کے فقہ کے مطابق زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جس کے فقہ کے مطابق حج ادا کر رہے ہیں، وہی امام ابو حنیفہ مجوسی سے معافی اس بات کی مانگ رہا ہے کہ چلتے ہوئے بے خیالی میں بغیر ارادے کے بلا قصد کیچڑ اٹھ کر آپ کی دیوار پر لگی ہے، آپ کا دیوار داغدار ہو گیا ہے، میں معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معافی دے دیں۔ اور یہاں معافی میرے گھر پر آئے گا، ناک رگڑے گا، میرے پاؤں میں سر رکھے گا، کیوں دے دوں معافی؟ بھائی بھائی کا دشمن ہے، چچا اور بھتیجے کی دشمنی ہے، ماموں اور بھانجے کی دشمنی، پڑوس اور پڑوسی کی دشمنی، محلہ دار کی دشمنی، وہ پن خان بنا ہوا ہے، میں معافی مانگوں گا؟ جیسا کیسا بھی ہے، مالدار ہے، بڑا ہے، رشتہ دار ہے، مرتبے میں بڑا ہے، کچھ بھی ہے، میرے پاس آئے گا، مجھ سے مانگے گا معافی۔ اور یہاں ابو حنیفہ چل کر دروازے پر گیا ہے، اور گیا بھی غیر مسلم کے دروازے پر۔ اس مجوسی نے امام ابو حنیفہ کے سراپے کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر کہنے لگا امام صاحب معافی مت مانگیے، مجھے اپنے پیغمبر کا کلمہ پڑھائیے جس پیغمبر کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، مجھے اس دین میں داخل کروائیے جو پاکیزہ دین آپ کو سکھایا گیا ہے، جس دین میں کسی غیر مسلم کی دیوار کے معمولی سے حصے کی بھی اتنی حفاظت ہے، پھر مجھے بھی اس دین میں داخل کر کے مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ اب ان کے معاملات دے کر کافر اسلام میں داخل ہو جایا کرتا تھا، اور انتہائی معذرت کے ساتھ میرے اور آپ کے معاملات دے کر مومن کفر میں جا رہا ہے، ہمارے معاملات یہاں تک بگڑ گئے ہیں۔ تو شریعت کا ایک حصہ معاملات ہیں، ہم اپنے معاملات کو درست کریں، ایک حصہ معاشرت ہے، معاشرت، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے حق ہیں، بچوں کے حق ہیں، پڑوسی کا حق ہیں، رشتہ داروں کے حق ہیں۔ یہ معاشرت زندگی گزارنا کہلاتا ہے، یہاں ہر آدمی پر کسی نہ کسی کا حق ضرور ہے، یہاں تک کہ یہاں صف میں کھڑے دو بندوں کا ایک دوسرے پر حق ہے، ہر آدمی دوسرے کے حق کا مقروض ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہر صف کا دوسرے صف والوں پر کوئی خاص حق موجود ہے، وہ اس کی رعایت رکھے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تم جمعے کے لیے آؤ تو جلدی آؤ، لیکن فرمایا اگر تاخیر ہو جائے تو کسی مسلمان کا کندھا پلنگ کر نہ آؤ، منع فرمایا۔ اب یہ حق ہے نا، اس لیے تو منع فرمایا۔ تو اہل حق کا حقوق ادا کرنا، جبکہ ہم اس سے بھی غافل ہیں،
न वालिदैन का हक, न बीवी बच्चों का हक, न रिश्तेदारों का, न पड़ोसियों का, न मोहल्लेदारों का, किसी का हक की कोई रियायत नहीं। तो हकदार का हक अदा कीजिए। हकदार का हक सिर्फ ये नहीं कि इसका मेरे ऊपर 10 रुपए हैं या 10 रुपए इसको लुटाने हैं। हम कहते बस ये हक है, मैंने 10 रुपए वापस कर लिए, हक अदा कर लिया। सिर्फ ये हक नहीं है। हुकूक उसकी बहुत सारे किस्में हैं। आका के शरीयत का एक हिस्सा वो अखलाक है। अखलाक, अब अखलाक किसको कहते हैं? हम हमारे यहां अखलाक, सलाम वालेकुम जी, बस मैंने सलाम किया और मुस्कुराया, कहते बहुत खलीक आदमी है, बहुत अखलाक वाला आदमी है, मिलता है तो मुस्कुरा कर मिलता है। ठीक है, ये भी अच्छे अखलाक में से एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि खिले हुए चेहरे के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मिलना, फरमाया ये भी एक सदका है। आप कोई और सदका नहीं दे सकते तो अपने मुसलमान भाई के साथ खिले हुए चेहरे के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मिले, ये भी एक सदका है। इस पर भी आपको अजर मिलता है। लेकिन अखलाक 3 किस्में हैं। एक आम अखलाक है, एक अखलाक अजीमाना है, एक अखलाक करीमाना है। हमें जो मिला है, हमारी शरीयत, हमारे पैगंबर ने जो हमें दिया है, कुरान पाक हमारे नबी की तारीफ करते हुए फरमाते हैं व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मेरे पैगंबर, आपके अखलाक आम अखलाक नहीं, आपके अखलाक अखलाक हसना नहीं, आपके अखलाक अखलाक करीमाना नहीं, बल्कि आपके अखलाक अखलाक अजीमाना है। और अजीम अखलाक क्या है? मैं रास्ते पर चला, किसी को ठोकर लगी, वो गिरा, जख्मी हुआ, मैंने उसे उठाया, अस्पताल पहुंचाया, उसके इलाज करवाया, उससे माफी मांगी और उसको अपने तरफ से कोई हदिया भी दे दिया। ये है अजीमाना अखलाक। हमारे पैगंबर ने हमें ये अखलाक सिखाए हैं। अखलाक हसना ये हैं, चलते हुए ख्याल करें बस। अखलाक करीमाना ये हैं, किसी के साथ ठोकर लगी तो उससे माफी मांग लेना। ये यहूद और नसारा को मिले हैं। अब वक्त नहीं कि मैं उसके तफसील में जाऊं। हमें मिले हैं अखलाक अजीमाना। अब मेरे पैगंबर को मक्का के मुशरिकों में से ऐसा कोई मुशरिक नहीं था जिसने न सताया हो। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या मर्द, क्या औरत, सब ने सताया। क्या आका, क्या गुलाम, क्या सरदार, क्या माता, हर एक ने अपना हिस्सा मिलाया। लेकिन मेरे पैगंबर जब एक फातिह के हैसियत से मक्के में दाखिल हुए, वो परेशान हो गए, हमारे साथ क्या करेगा? फरमाया मैं आज वो कहता हूं जो मेरे भाई हजरत यूसुफ ने फरमाया था। और मेरे भाई हजरत यूसुफ ने फरमाया था ला तसरीब अलैकुमुल यौम। मेरे भाइयों, आप पर कोई मलामत नहीं, आप पर कोई मलामत नहीं। मैं आपके सामने कभी गिला भी नहीं करूंगा, मेरे ऊपर जो दास्तान गुजरी है कभी उसका शिकवा भी नहीं करूंगा, वो दास्तान भी बयान नहीं करूंगा। और जब वालिद को बताया तो अपने भाइयों का घर से उठाना, कुएं में फेंकना और कुएं से उठाकर काफिले वालों को बेचना, इसका जिक्र नहीं किया है। सिर्फ इतना कहा है हम और भाई देहात से उठे, अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर एहसान किया, मुझे जेल से निकाला। ये भी नहीं फरमाया मुझे जेल में डाला गया, बाप बहुत परेशान हो जाएगा। फरमाया फ़क़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिन अस्सिजन। उसने एहसान ये फरमाया कि मुझे जेल से निकाला, ये मेरे रब का एहसान। फरमाया मैं तुम्हारे ऊपर कोई मलामत नहीं, कोई जिक्र नहीं करूंगा, अब्बा के सामने भी नहीं, लोगों के सामने भी नहीं, तुम्हारे सामने भी नहीं, तुम्हारे बेबी बच्चों के सामने भी नहीं। मैं यूसुफ भूल गया हूं, तुमने जो कुछ किया मुझे याद ही नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया मक्के वालों, मैं वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने कहा था। 10 साल पहले तक जो कुछ तुमने किया मुझे हरफ हरफ याद है, लेकिन भूल गया।
इन 10 सालों में आपने 27 दफा मेरा मुकाबला किया है, तलवार लेकर मेरे पीछे आए हैं। मैं पहली दफा मक्के में आया हूं, आप इससे पहले 26 दफा मेरे खिलाफ मदीने पर हमलावर हुए। आप लोगों ने मेरा रास्ता रोका, आप लोगों ने मुकाबला किया, लेकिन ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, कोई बात नहीं, मैंने माफ कर लिया। मुझे याद है वो बिलाल का तड़पना, लेकिन ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, कोई बात नहीं, मैंने माफ कर लिया। मुझे याद है वो खब्बाब के पीठ को लोहे के गरम लोहे के साथ दागना, मुझे याद है, लेकिन ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, तुम्हारे पर कोई मलामत नहीं। वो मुझे याद है हजरत सुमैया की शहादत, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई मलामत नहीं। मैं तुम्हें कोई ताना नहीं दूंगा, बैतुल्लाह में जाकर अमन ले लो तो तुम अमन में हो, अबू सुफियान के घर में जाओ तो तुम्हें अमन है, यहां तक कि अपने घर का दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाओ तो अपने घर में भी तुम्हें अमन है। यह है अखलाक अजीमाना, अजीम अखलाक। हमारे पैगंबर ने हमें यह अखलाक बताए। क्या करूं, अगर मेरे गुंजाइश में होता मैं गाड़ी को एक जगह रोक लेता, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है, क्या करूं। देहाती आया, मस्जिद नबवी का अहाता है, कच्ची दीवारें हैं, एक वो हिस्सा है जहां सहाबा नमाज पढ़ते हैं, और एक उसका सहन है, दालान। वो जो एक और लफ्ज भी है लेकिन वो बहुत बुरा है पुश्तों में एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है लेकिन वो इस्तेमाल अच्छा नहीं है, इसलिए तो सहन में, दालान में दीवार के साथ बैठकर उसने छोटा पेशाब करना शुरू किया। मस्जिद नबवी है, सहाबा ने देखा कोई पेशाब कर रहा है मस्जिद में, उठे। अल्लाह के नबी ने फरमाया सब्र कर, बैठो, आराम से रहो, आराम से। अल्लाह के पैगंबर मस्जिद में, फरमाया मैंने देख लिया, बैठो। मेरे नबी ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, मेरी जिस तरह मैं सामने देखता हूं इस तरह पीछे भी देखता हूं, कभी मौका मिला तो वो अर्ज कर दूंगा कि कैसे। इसलिए कि मेरे भाई कहते हैं कि जी मेरे पैगंबर को सब कुछ दिखता था, आगे भी देखता था, पीछे भी देखता था, हालांकि उसका मकसद ये नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने देख लिया, आराम से बैठ। फारिग हुआ, उसे बुलाया, बुलाकर उसे पूछा कहां से आ रहे हो? फुला इलाके से। अच्छा, पहली दफा यहां से गुजर रहे थे? उसने कहा जी हाँ। आप कौन हैं? उसने कहा मैं अल्लाह का नबी पैगंबर हूं, मेरे पास आसमान से वही आती है, ये सब मेरे मानने वाले हैं, ये मेरे सहाबा हैं। देखो ये जहां हम बैठे हैं ये अल्लाह का घर है, ये तकद्दुस रखता है, एहतराम रखता है। आपने जो किया ये गलत किया, ये सही नहीं किया, आइंदा के लिए ऐसा नहीं करें। और सहाबा से फरमाया जाओ वो मट्टी कुरीद कर उठाकर बाहर फेंक दो। सहाबा गई, इसने देखा ये सरदार, ये इसके मानने वाले, मैंने इसके हुजरे में अंदर जाकर पेशाब किया और इतने बर्दाश्त और तहम्मुल, मुझे कुछ भी नहीं कहा, और मैंने जो गलती की है इजाला भी मुझसे नहीं करवाया, वरना अखलाक हसना का तकाजा था। आपने पेशाब किया, अब इसको उठाकर बाहर फेंक। आपने पेशाब किया है, ये उठाकर बाहर फेंको, हमसे माफी भी मांग लो, ये है करीमाना। लेकिन नहीं, मेरे पैगंबर को अखलाक मिला है अजीमाना। कोई बात नहीं, आपसे हो गई गलती, आप जाइए, घर जाना चाहें, जहां जाना चाहें आप जाना चाहते जाइए, हम साफ कर लेंगे, आइंदा ख्याल करना। उसने कहा आप अपने साथी कैसे बनाते हो, अपना दोस्त कैसे बनाते हो? पाक कपड़े पहनेगा, गुस्ल करेगा, ठीक है। वो घर गया, उसने गुस्ल किया, उसने साफ कपड़े पहने और आकर बैठ गया, मुझे भी इनकी तरह बनाओ, मुझे भी इनकी तरह बनाओ, मैं भी इनकी तरह बनना चाहता हूं। आपके अखलाक इतने अजीम हैं तो इनके अखलाक भी ऐसे अजीम होंगे, मुझे ऐसा बनाओ। अब गिला आपसे नहीं, हमें गिला अपने आप से भी है कि इस मकाम के 100वें हिस्से तक आज मिंबर पर बैठने वाला भी इस मकाम तक नहीं पहुंचा है।
मुआशरा कहाँ पहुंचेगा? मुआशरे से तो शुक्वा और गिला भी नहीं है। मुआशरत गिला तो अपने आप से है कि अब तक हम उस हिस्से के 100वें हिस्से तक नहीं पहुंचे हैं। तो हम जिस तरह अपनी नमाज रोजे का ख्याल रखें, इसी तरह हम अपने अखलाक का भी ख्याल रखें। अब वक्त ख़त्म हुआ, ये बात मुझे तमहीद के तौर पर अर्ज करनी थी। असल जो मुझे बताना था हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की एक बात और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बात। एक सवाल हुआ है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, उसने जवाब दिया। वही सवाल हुआ है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, उसने जवाब दिया। लेकिन उसके जवाब में आधा घंटा लगेगा, इतना वक्त न आपके पास है और न मेरे पास है। तो अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने दीन की फिक्र करें। सबसे पहले अल्लाह पाक मुझे तौफीक दें, फिर हम सबको अल्लाह पाक दीन और दीनदारी की फिक्र नसीब फरमाएं। और मस्जिदों को जिस तरह अभी तक आप लोगों ने आबाद रखा है, इसी तरह 12 महीने अपनी मस्जिदों को आबाद रखें। जिस तरह रमज़ान में अल्लाह आपको देखकर खुश होता है, फरिश्ते देखकर मुस्कुराते हैं, अल्लाह की चाहत यही है कि 12 के 12 महीने साल भर अल्लाह पाक इन सफ़ों को भरे हुए देखें। अल्लाह पाक के मखलूक फरिश्ते इन सफ़ों को भरे हुए देखें तो फरिश्ते आपके लिए, मेरे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक की रहमत का नुज़ूल होगा।